Hello everyone, how are you all? Let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest learning platform and academy. Crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. So hello my dear scholars. I am J. Vijay Manorma. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. So let's crack 10 CBSE by using the referral code VMCBSE. Here it is a super short introduction about me. I have mentored many as I like to inspire students to set their goals and achieve that. I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. So crack all the CBSE exams with India's largest learning platform. उसके लिए आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है so that you can access the unlimited live and recorded classes from India's top educators. So for that you need to take the subscription. If you are taking the subscription, what you will get? Daily live classes you will get, structured courses, live tests and quizzes, and unlimited access. So when you are using my code, you will get 10% instant reduction gift. Okay, then 1 month course will be of 2,250 rupees. 6 months will be of 9,000 rupees. 12 months will be of 13,500 rupees. 24 months it will be of 22,500 rupees. 36 months will be of 28,800 rupees. आपको 800 रुपीज़ में ही आपके सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो जाएगी. अगर आपका गोल फिक्स है, IIT करोगे, नीट करोगे, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप करना चाहते हो तो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आपको सारे लाइव क्लासेस चलेंगे with the top educators. These are few of the top educators who are going to teach you in this channel, in this platform, the comprehensive syllabus of mathematics, social science, Hindi, English and science, which is included with physics, chemistry and bio. Okay, we are in touch with Telegram app also. Quest 10 CBSE is the channel, Telegram channel, where you will get all our updates. So CBSE class 10, you have to install the Unacademy learning app. उसके बाद CBSE class 10th goal करना है and go for subscription by using the referral code VMCBSE. Today I came with a very nice small tiny video to tell you the for the NEET aspirants, all the NEET aspirants. कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें लास्ट 1 वीक कैसे प्रिपेयर करना है मैंने बताया था. वो लास्ट 1 week how to prepare. When I told in that only I got an idea why can't I tell that about how to prepare for physics, how to prepare for bio, how to prepare for chemistry, like, and that's why I came with this idea. So last minute preparation for physics. Most of the children, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नीट में फिजिक्स का जो पार्ट है वो सबसे डिफ़िकल्ट है, हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं. लेकिन वो बहुत ही मीन्स एक if one is telling, other will feel that yes, might be we can't do the physics. It is not like that. Everyone can solve physics in a easy manner. Only the thing is you have to be positive. First thing आपको positive रहना है कि I can do it. पहला चीज आपको याद रखना है that I can do it. I can do it. I will do it. ऐसा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस अगर रहेंगे ना, तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाओगे. पहले ही अगर आप सोचोगे कि मुझसे नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ओके, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को समझाइए, अगर टीचर्स देख रहे हैं तो उनको इंस्पायर कीजिए, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो अपने भाई को, बहन को या अपने फ्रेंड्स के भाई को जो भी नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको ये वीडियो दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो. ओके, so the national eligibility cum entrance test is called as NEET. It is the only entrance test for the admission to an MBBS course. To an MBBS course, it is the
It is the only entrance test for admission to an MBBS course in India. So this is why the difficulty level of the examination is high, and only those who have prepared for the examination seriously can clear it. ऐसा तो है. So since the examination for 2020 has been postponed several times, the need to stay focused has increased. Students preparing for NEET are already aware of the concept of focused study. बच्चे जानते हैं focused study के बारे में, so इसलिए उतना ज़्यादा बार बोलने की ज़रूरत नहीं है. First one you need to remember is appropriate notes. Appropriate notes जो आपने अभी तक बनाया, उस नोट्स में आपने शायद सारे फॉर्मूलाज एक ही प्लेस में लिखा होगा. सो वो सारे जो बेसिक आपने जो इसमें उतना ज़्यादा जेई के जैसे उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपने बेसिक्स पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, इसमें जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से, वो बहुत ही काफ़ी है. अगर एनसीईआरटी आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, गो फॉर एचसी वर्मा. एचसी वर्मा में देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ो. इफ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी, गो फॉर एचसी वर्मा. अगर सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, थियरी आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव्स आप डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लो. ओके, डीसी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर लो. सो ये जो लास्ट वीक का प्रिपरेशन है, उसमें आपने अभी तक जो भी नोट्स बनाया, एक बार रिवाइज कर लो. कल मैंने बताया था कि 3 आवर्स यू हैव टू स्पेंड फॉर ईच सब्जेक्ट. सो फिजिक्स के लिए भी 3 आवर्स आपको स्पेंड करना है. उसके बाद जहाँ भी वीक एरियाज है आपको डेवलप करने के लिए 1 आवर एक्स्ट्रा ईच सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेंड करना है. नेक्स्ट थिंग इज अप्रोच. आपका अप्रोच कैसा है सब्जेक्ट के बारे में. आप कैसे सोच रहे हैं कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट फिजिक्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आई कांट सॉल्व, यू कांट. इफ़ यू आर फीलिंग दैट येस आई कैन डू इट, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मेंटली आपको वो फिक्स हो जाना है. और आपका अप्रोच सब्जेक्ट टूवर्ड्स आपको वैसे रहना है, पॉजिटिव. बी पॉजिटिव टूवर्ड्स द सब्जेक्ट. Okay, positive towards the subject. And the third one is the way you read. Okay, what is the way you read? अगर आपको लगेगा कि ये सारे जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है वो अभी पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ लेते हैं, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि 1 वीक जब बाकी है, 1 वीक में आपको क्या करना है कि जो भी आपने पूरा पढ़ा, अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, you know each and everything, so better go for the revision number of times. How many times you can revise, you revise. What are the important topics, most of the questions from where you will get, that also I am going to tell you. So आपको repeatedly read, repeatedly. okay, अगर हो सके तो बाय हार्ट कर लो. बाय हार्ट, दिल से पढ़ोगे ना. बाय हार्ट क्यों बोला जाता है? दिल से पढ़ो. आपको सीरियसली आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर सो एंड सो, अगर आप अपना नाम वैसे सुनना चाहते हो, तो आपका जो भी डर है आपके मन में, उन सब डर को भगा दो. कुछ डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप बहुत अच्छा करोगे. अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारे कॉन्फिडेंटली आपको एक बार रिवाइज कर लो. अभी लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, सबको देख के उनको लगता है कि ओ मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं है. ऐसा नेगेटिव थॉट्स तो आने ही मत दो. जब भी आप पढ़ते हो, रिपीटेडली आप पढ़ते रहो. रीड बाय हार्ट, दिल से पढ़ो. बाय हार्टिंग नहीं, रट्टा मारो वो नहीं बोल रही हूँ. दिल से पढ़ो. दिल से पढ़ोगे तो ज़रूर आपको रैंक आएगा. अगर ये वीडियो एक को भी इंस्पायर करे और रैंक आ जाए, तो मुझसे ज़्यादा खुश इस जहान में कोई भी नहीं होगा. इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मे बी आई एम टीचिंग द 10th क्लास, बट आई हैव द आइडिया ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस एंड ऑल, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस. ओके, सो जस्ट गो फॉर इट.
शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जितना हो सके पॉजिटिव रहो, लास्ट मोमेंट में पॉजिटिविटी ही काम आता है। पॉजिटिव रहो, जितना भी पढ़ा कॉन्फिडेंट रहो, एक बार रिवाइज करते रहो। 24 आवर्स में 5 आवर्स सोने के लिए दो, रिमेनिंग फुल टाइम स्पेंड फॉर concentration. That is only our fourth part is concentration. Concentrate करो, नो डिस्ट्रैक्शन। जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप 20 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो सो 20 मिनट्स पढ़ो। 20 मिनट्स का एक 5 मिनट का गैप दो, एक कॉन्सेप्ट पूरा टाइमर लगाओ। टुडे यू आर गोइंग टू, नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक, सो दैट टॉपिक वंस रिविजन ओनली, नो टाइमर लगाओ, अलार्म पहले ही सेट कर लो 20 मिनट्स का, और चेक करो कि 20 मिनट्स में आपने ख़त्म किया कि नहीं। वो 20 मिनट्स में आप ज़रूर ख़त्म कर सकते हो और आपके पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। सो ये 5 मिनट का जब गैप दोगे और कौन सा चैप्टर फिर से पढ़ना है आप एक बार डिसाइड कर लो, जस्ट गो फॉर दैट, कंसंट्रेट करो और शुरू हो जाओ। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। ओके, कौन से कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंटली आपको आपके गोल के टुवर्ड्स काम करना है। गोल के टुवर्ड्स, गोल क्या है? दैट प्राउड मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू वेयर दैट वाइट कोट एंड होल्डिंग दैट स्टेथोस्कोप। पेरेंट्स को देखो कितने खुश हो जाएंगे, अपने आप को देखो, मिरर में देखो कितने खुश लगोगे आप। सो इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली गोल के बारे में सोच के गोल के लिए काम करना है, कंसंट्रेट रहना है। रिपीटेडली आपको जो भी चैप्टर्स, ओके आपको आ गया, लेकिन जो टाइम मैंने बताया उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे वो 3 आवर्स, 1 आवर वीक सब्जेक्ट्स का, 3 आवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग जो है रिपीटेडली पढ़ो और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वीक जो है ये 1 आवर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, वो भी ये स्ट्रॉन्गर सेक्शन में आ जाएगा। सो आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि आप पढ़ सकते हो। आपके आंखों के सामने, आपके नाम के सामने डॉक्टर दिखना चाहिए और आप डॉक्टर की कोट पहन के स्टेथोस्कोप पकड़े हुए हो, ऐसा इमेजिनेशन आपको रहना चाहिए, तभी आप पूरा कंसंट्रेट कर पाओगे। ज़्यादा ड्रीम्स भी मत देखो, पढ़ो और आंखों के सामने वही देखो कि आपने एंट्रेंस क्लियर कर दिया और आपने डॉक्टर की कोट पहन ली। ओके, सो नेक्स्ट है प्रैक्टिस। 6th वाला है प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। MCQs, यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव्स नहीं आने वाले हैं, सो जितना हो सके प्रैक्टिस MCQs की प्रैक्टिस करो, काफ़ी है। जितना हो सके करो करो करो, प्रैक्टिस करो MCQs की। ओके, एवरी डे स्पेंड फॉर, एंड यहाँ क्यों प्रैक्टिस MCQs, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा यहाँ। ओके, टाइम मैनेजमेंट। आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व कर चुके हो, अभी टाइम है पूरा प्रीवियस पेपर हर दिन, अगर हो सके तो हर दिन एक पेपर 3 आवर्स सॉल्व करो, बैठ के 3 आवर्स रिव्यू करो। आपको सारे ऑप्शंस के बारे में समझना है, आपको सारे ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन कौन से टॉपिक का है वो सब आपको समझना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, व्हाट आर द 4 ऑप्शंस मीन, these 4 options belongs to what, okay, which obviously one option will be correct, why these 3 were given, in what way these 3 are related to the question, or these 3 are related to something else which is not given in the question. Those all things you have to understand and you have to work accordingly. okay, so जो important वेटेज कैसे देते हैं फिजिक्स में देखो तो मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। इन चैप्टर्स में से कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं। इन चैप्टर्स में से अगर आप कंपलसरी करोगे तो आपको 45 में से 40 तो गारंटी आ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ज़रूर आपको उसमें से मार्क्स ज़रूर आएगा, है कि नहीं? केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, if you want your result, leave the excuses, just practice. So NCERT, the most important chapters for this section are laws of motion, system of particle and rigid body, thermodynamics, magnetic effects of current and magnetism, current, electricity, etc. Experts are suggesting more time on these chapters. You have to spend more time on these chapters.
more time you have to spend to these chapters. We have apart from preparing from NCERT and other reference books, a candidate must also focus on solving numerical based questions to secure good marks in physics. अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बगल में छोटा सा प्लेस तो आपको रहेगा ना, उस प्लेस में ही आप सॉल्व करो। पहले आप देख लो क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन देख लो, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहां पे देख लो। जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन फॉर्मूलाज को चार्ट में लगा के अराउंड योर पेस्ट, ओके, व्हेनेवर यू सी दैट दोज फॉर्मूलाज मस्ट बी रन इन योर माइंड। कौन सा फॉर्मूला कौन सा चैप्टर से है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं एक्चुअली। मैकेनिक्स में से कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे। मैकेनिक्स मोस्टली इट कवर, देखो कितना सारा, ओके, मैकेनिक्स में से कंपलसरी देते हैं, सो कंसंट्रेट करो मैकेनिक्स में। उसके बाद आ गया टर्न हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स तो इजी सब्जेक्ट है, आप लोग कर सकोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ये भी अच्छा चैप्टर है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया अभी तक, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ अगर थियरी में से देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लोगे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स, ये भी अच्छा चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चंस देंगे इसमें से, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। एंड उसके बाद है ऑप्टिक, जहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हो, क्योंकि यहाँ जो है रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का, जो भी लेंस मेकर्स का, ये सारे का जो फॉर्मूलाज रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नोट में से आपका कैलकुलेशन में आप लोग लूज कर सकते हो। सो इसलिए माइंड कैलकुलेशन मत करो, फॉर्मूलाज वगैरह टाइम आपको सफिशिएंट देंगे, इसलिए आप बगल में ही बॉक्स बना के सॉल्व करो। इफ़ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी टू सॉल्व, जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग तो आने मत देना। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो करेक्ट आंसर देने की सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे ऐसा मत सोचना। आप लोग जितना कर रहे हो वो करेक्ट करो। नेगेटिव मार्किंग में अगर चला जाएगा ना तो जितना आपने करेक्ट किया वो भी चला जाएगा, इसलिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज ऑल चैप्टर्स, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 95%. If you concentrate here, you will get definitely 95% in the physics. अगर कोई सा कैलकुलेशन में, अगर कोई सा भी ABCDs में अगर मिस हो गए तो भी 95% आपको आ जाएगा if you concentrate on these all topics. Okay, so finally, putting effort is इम्पॉर्टेंट। ओके, आपने कितना एफर्ट किया वो सोचो, और स्टार्ट योर डे विथ अ डिटर्मिनेशन दैट यू आर गोइंग टू बेड विथ अ सेटिस्फैक्शन दैट आज कुछ सीखा। ओके, ऑलवेज आई टेल दैट आई लाइक दिस कोड, स्टार्ट योर डे विथ अ डिटर्मिनेशन दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग एंड गो टू बेड विथ अ सेटिस्फैक्शन दैट यस आज कुछ सीखा, है कि नहीं। ये जो सारे चैप्टर से एक बार कंसंट्रेट करो। पेरेंट्स, बच्चों को तो फ़ोन नहीं दिए होंगे शायद ये सब देखने के लिए, पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं या टीचर्स जितने भी देख रहे हैं, ये या जो भी भाई बहन देख रहे हैं, एक बार फॉरवर्ड करो और उनके देखने के लिए बोलो ये वीडियो, उनको बहुत ही हेल्प होगा। ओके, जो पार्शियली प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं, ऐसे जो बिना सीरियसनेस के भी जो पढ़ रहे हैं, ये लास्ट वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन दिस लास्ट वीक and definitely you are going to wear that white apron and the stethoscope. That proud moment I am waiting, that proud moment I am waiting, that ma'am I became a doctor. Okay, already my one of few students are doctors only. Whenever I chat with them I feel very great, बिकॉज मुझे लगता है वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर बन के कितने बड़े हो गए, बहुत खुशी होती है उनको देखने में। अगर जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उनको पॉजिटिव एनर्जी फील करो कि वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। सो अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दो, अपना
फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखो। जो भी 1 आवर का टाइम फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग बनो। टीवी मत देखो, फोन मत देखो, वो ये सारे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सो इसलिए आप बुक भी मत देखो, बुक भी मत पढ़ो। वो जो 1 आवर का टाइम है उसमें स्पेंड करो, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील करने का, मेडिटेशन करो, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करो। सो दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एनर्जी टू रीड अगेन। ओके, सो होप यू विल लाइक दिस सेशन। आपको शायद थोड़ा सा तो यूज होगा मेरा सेशन, मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने ये सेशन किया। अभी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का भी मैं करने जा रही हूँ। सो 3 days, ऑल द 3 days you will get for 3, and one more day I am going to solve all the physics questions from the NEET question paper. Okay, one of my student, when he has written that question paper, I have taken that paper, I am going to solve. Okay, so hope you like it this session. Share with your friends, like the session. आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है। ऑलरेडी आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने तो इंस्टॉल कर लिया, और वो पढ़ना भी चाहते हैं। कौन सा चैनल है मैडम, ये सब कुछ पूछते हैं। हमारा चैनल है लेट्स क्रैक 9, 10 CBSE। सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग ऑल द अपडेट्स। क्लास 10 को गोल करो अनअकैडमी ऐप में इंस्टॉल करने के बाद, एंड ले लो सब्सक्रिप्शन VM CBSE यूज़ करके। ओके, VM CBSE यूज़ करके ले लो और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से शुरू करो। अगर आप 10th के बच्चे हो तो ये 12 मंथ्स का और 36 मंथ्स का बेस्ट ऑप्शन हैं। ये दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं। और ये 24 मंथ्स का 9th और 10th या 11th एंड 12th का बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, फिजिक्स के लिए आप NCERT पढ़ो, डाउट्स हो तो HC वर्मा एक बार रेफर करो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए DC पांडे का एक बार, वो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है एक बार चेक कर लो। सारे ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व करो, ABCD से रट्टा मत मारो, सॉल्व करो। रीड बाय हार्ट, दिल से पढ़ो, रीच द गोल। थैंक यू वन एंड ऑल। शायद आपको पसंद आया होगा, लाइक करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू वन एंड ऑल।